Bismillahirrahmanirrahim. Today's presentation is on some other features of Tableau. तो इसमें हम पहले थोड़ा सा इस जो डिलेज आता है डिलीवरी में, पहले हम उसको थोड़ा सा मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट। उसके लिए पहले हम करते हैं कि पहले डिले कंप्यूट करने के लिए वी कैन क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम कह देते हैं कि डिलीवरी डिले, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि जी स्केड्यूल डिलीवरी डेट माइनस द क्लाइंट डिलीवरी डेट, ठीक है। ये आपकी डिले आ जाएगा। ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल में डेज में ही आएगा। तो हेयर वी क्रिएट यहाँ पे वेरिएबल आ गया जो कि मेजर है। तो ये आपको सम ऑफ टोटल डिले कितना है 25,036। अब ये देखना ये है कि ये किस में आ रहा है। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। Client delivery date is in this format. This goes all the way up to, or I can just see it here, you know. तो ये फॉर्मेट में, सो अगर मैं इस डेट को माइनस करता हूँ, आई थिंक इट्स इन डेज, क्योंकि ये आवर्स में तो नहीं है। तो ये डेज में डिलीवरी डेट आएगी, ठीक है। क्लाइंट डिलीवरी डेट में इट्स इन दिस फॉर्मेट, तो प्रॉब्ली वो डेज में आएगा, बिकॉज द स्केड्यूल डिलीवरी डेट एज वेल उसके अंदर जो आ रहा था आपका, हाँ ये तो 227 तो इन दिस केस देयर इज नो डिले। तो अगर हम इन दोनों डेट्स को माइनस करते भी हैं तो उसमें डेज में आंसर आएगा। सो दैट सम्स इट अप। तो दीज आर द डेज। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इट्स इन डेज। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो इट टेल मी द टोटल, और आई कैन सी द एवरेज एज वेल। तो मैं इसका एवरेज के तौर पे, तो एवरेज डिले मेरा कितना आ रहा है 5.398 डेज। दैट्स क्वाइट अ लॉट इन फैक्ट। पर इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो पहली चीज जो हम विल ट्राई टू, whenever you have a BI situation, तो probably the most generic of the charts is the map one, right? तो ये मैप के ऊपर अगर मैं डिलेज देखना चाहूँ तो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन कंट्री एंड देन आई विल डबल क्लिक ऑन दिस डिलीवरी डिले। ओके, तो इस तरह देखने से बेहतर है कि आई यूज दिस अदर मैप, जिसमें मुझे थोड़ा सा इस तरह से वो क्लियरली नजर आता है, ठीक है। And what I can do is I can obviously change the color here because it's a bit uncomfortable. So I can go with this green gold combination. Okay. So it shows me, you know, the dark green ones are those which have more delay. So some ki bajaye, let me look at the average delay in a given country. So you can see that some countries get highlighted with very high delays. अच्छा, let's focus right now only on Africa. Okay, so उसके लिए we'll just have this let's say I have this radial selection or rectangular selection. ये करने के बाद ओहो, so keep only. So if I keep this only, then you know the other things get filtered out, and I just want to focus on this region. So this is one thing okay, I want to understand. So I can see already that South Africa and Congo and Benin and to some extent Senegal, they are good countries with less delays, and Kenya and Libya and Nigeria have more delays. So obviously we want to understand that why these delays are happening. So we'll see that later on. But if we talk about, you know, a dashboard, so this is something which we can present earlier on. There seems to be a serious problem of delay in several countries, and several countries have, you know, they don't have a delay problem, but there are not many countries. Okay? So usko let's rename this as the, let's say delays or average delay in Africa.
Remember we are talking about a supply chain जो कि medical supply chain है, तो we are talking about medical products like medicines and injections and something like that. Average delay in Africa, and I can name the same here because this will be useful later on. Average delay. So obviously you can यहाँ पर आप इसको you can just make it 16 to just make it better, or you can change the color if you want. So you can have this color, make it bold as well. Oh, so you tiny one. No, for some. So here, so let's make it 16. Let's make it bold. Let's make it this color. So average day in Africa. Okay. Now, if you want to, obviously, we want to drill this down later on. So we need some other charts. Okay. So in order to have another chart, I click on an extra sheet. अब हमने देखना ये है कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाउ कैन आई ड्रिल इट डाउन. ओके, तो मेरे लिए जो इस वक्त आई बिलीव के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिले, एक तो जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए ज़रूरी है. तो प्रोडक्ट यू कैन सी के ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि मेरे लिए डोजेज फॉर्म जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ है. ओके, सो दिस इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरा डोजेज फॉर्म क्या है, because this is my main product offering. Although I also have a product group. So अगर मैं product group को देखूँ तो, but this does not tell me much. So there are 3 groups, and we are not able to understand the meaning of these groups because the data is not generated by us. So we can't really make any assumptions or claims about the data by using the product group. And the other factor that is important for us is the shipment mode, जिसका ताल्लुक डिले से बनता है, राइट, कि आप क्या चीज़ लेके जा रहे हैं और आपका शिपमेंट मोड क्या है. ठीक है, सो इसमें हम इज अ फ्लेक्सिबिलिटी हियर कि हम उसकी हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं. सर जो आप एक चीज पूछना था कि जब आपने जो डिले निकाला है तो उसमें जो टैब्यू ने उसको डेट फॉर्मेट में पहले इसको मतलब क्या आइडेंटिफाई किया था. हाँ, ये देखिए ना, ये यहाँ पर इट हैज टू बी शोइंग एज अ डेट फॉर्मेट. यू हैव टू, अगर आपका नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ एरर्स होंगे, तो उसको रिमूव करना होगा. डेट होगी तो वो सबट्रैक्ट करेगा ना. ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, तो व्हाट आई बिलीव इज के these two variables are important for me. एक तो डोजेज फॉर्म है और दूसरा ये कि वो डोजेज फॉर्म किस तरह से शिपमेंट हुई है. तो मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है किसके बजाय कि मैं उसको अलग अलग करूं. आई कैन कंबाइन देम in this. I just click both of them together and then I say create hierarchy, create hierarchy. So I can so I can just name it like that. अब ये उसने उसको उसमें एक कर दिया. ठीक है, तो जब मैं उस हायरार्की को यहाँ ड्रैग करता हूँ, मैंने डबल क्लिक ऑन दिस वन, तो द हायरार्की इज ऑलरेडी देयर लाइक दिस. ओके, सो अब ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं देख सकूं कि, क्योंकि मेरे लिए ये these are the separate product lines, right? इंजेक्शन, ओरल पाउडर और टैबलेट्स, ये 3 मेन चीजें मेरे पास हैं, एंड कैप्सूल्स एज वेल. तो ये 4 हैं. तो अब मैं बेसिकली देख सकता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करके कि वो किस मेथड से वो डिलीवर हुआ है, एंड दैट माइट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है. डैशबोर्ड पे ये होगा. ठीक है, तो बहरहाल ये तो एक दिस इज समथिंग जो कि इस वक्त मेरे पास नजर आ रहा है. तो बट अब मैंने इसमें मेजर को ऐड करने के लिए ऑब्वियसली आई विल पुट इन द डिले. अच्छा, इससे पहले मैं ये काम करूंगा कि आई विल पुट बोथ ऑफ दीज as filters as well, क्योंकि I want to be able to select one of them. So I will just click on apply and also shipment mode. अभी तो मैं सबको select कर लेता हूँ and apply shipment mode. Okay, और obviously ये मैंने आपको कहा था कि you can show the filter here as multiple value drop down, and similarly ये अगर आपने वीडियो देखी है तो I'll do the same thing for this as well. अभी I don't want to mess around with other things right now. ठीक है, now what I can do is I can double click on this delivery delay. Obviously it's going to automatically fill that up. Okay, but I want to see a bar chart obviously.
और जो मैं डिले है आई वांट टू टेक दैट एज द एवरेज बिकॉज it does not make sense for me to have the total delay. I want to see the average delay. Okay, and to make the colors more interactive, so I can go here and click on this orange color, or I don't have a color palette here, so this, yeah. तो ये मेरे पास आ गया, तो you can see कि ये चीजें थोड़ी सी उसमें जा रही हैं. तो what I can do is कि एक तो मैं because air and air charter are two different things, so what I'll first try to fit the entire view. Yeah, so you see it creates a bit of a hassle here. So entire view पे इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो fit height पे भी यही होगा, fit width is fine. Just let us go with the standard thing. Or what we can do initially is when we do the filters, let us focus currently only on the tablets. So I don't want to chewable tablet. Okay, so you can see it's a bit better now. So now I can fit the entire view, fit height effect, and it's quite okay now. Okay, and you can see that air charter has more contribution than air in most cases. I can just filter out the air if I want, but I'll just let it be right now. इसके अलावा मैं ये काम कर सकता हूँ कि I can also, I can play with this. So what if I put the freight cost? क्योंकि freight cost is a variable जिसका ताल्लुक obviously delays के साथ है. Maybe the cost is adding, cost की वजह से आपकी कोई consignment delay हो गई हो, cost की processing में delay हो गई, we never know. तो I can do 2 or 3 things here कि या तो freight cost को मैं size में डाल दूँ. Okay, so I can see के come freight cost, and I can obviously I can do the average freight cost here. Now you see if I put the average freight cost, then it makes sense. So this is a stuff जिसमें this air charter chewable tablet FDC में delay बहुत ज़्यादा आया है. Okay, और it's like 35 days of average delay for this particular category, and the freight cost is also quite a lot. Average freight cost for this particular category. So it does seem synonymous कि अगर delay ज़्यादा है, freight cost ज़्यादा है, तो delay ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इन तीनों में तो यही बात नजर आ रही है, और ये नेगेटिव साइड पे ये मेरे लिए पॉजिटिव्स है. तो बहरहाल एक तो ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन what I can also do is कि I can put that as the label. So I can put the label, but labels are not really, it's not very convenient for me to read. So I'll just go with the size one right now. Let's see what happens. Okay. तो एक तो ये चार्ट है जो कि मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकता है कि so I'll just obviously name it. So let me say कि average delay for dosage form and shipment mode. So obviously I'll just same color as the okay. So I have not written the freight cost here, but it's okay. Average delay, shipment mode, dosage form and shipment mode. Okay, so this is one other thing जो कि हम इसमें कर सकते हैं. एक और चीज जिसका ताल्लुक डिले से हो सकता है, वो जो है वो बेसिकली आपका we can think about the throughput of the item and also the line item value. So अगर किसी जगह पे डिले आ रहा है तो उस आइटम का थ्रूपुट वगैरह भी देखना हमारे लिए जरूरी हो सकता है. रिमेंबर कि थ्रूपुट एक वेरिएबल था जो कि हमने कंप्यूट किया था. Let me see. Yeah, so this was basically a calculated field which is the line item quantity divided by unit measure per pack. तो ये हमने उसको खुद कंप्यूट किया था. ठीक है, so
in this case I can have a throughput here, item throughput, or I can talk about the line item value of that item. ठीक है कि वैल्यू के हिसाब से उसकी थ्रूपुट का क्या वो आपका हिसाब किताब चल रहा है. ठीक है. So यहाँ पर if I take the average, और I can distribute. अब आपको पता है ये स्कैटर प्लॉट के अंदर आपको पता ही है कि यहाँ पर पावर बीआई में भी यही था कि इट्स नॉट, ये डायरेक्टली नहीं बनाएगा, वो नीड अ थर्ड वेरिएबल. So the third variable can be the vendor name, something like that. So the vendor name. So let's see what's the vendor name. Yeah. So you are basically, इसमें यही होता है ना कि हम कि vendors को distribute कर रहे होते हैं. क्या ख्याल है? We are sending to the vendor. So we are sending to strides here. तो strides को जो चीज जा रही है उसका throughput इतना ये है. तो we are assuming कि vendor name is something जो कि मैं देखना चाहता हूँ in order to understand कि delay किन vendors पे ज्यादा आता है. If you think कि there is some other variable जो कि आ सकता है, for example you can also talk about the manufacturing site. तो manufacturing site can also be जी यहाँ पे क्योंकि आइटम थ्रूपुट देख रहे हैं तो आई थिंक कि आपका जो डोजेज वाली जो चीज है वो एक बेटर मेट्रिक होगा इसको स्कैटर करने के लिए. डोजेज फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली देखें दो तीन पर्सपेक्टिव्स है ना. मेरा इस फॉर्म में मेरा पर्सपेक्टिव डोजेज फॉर्म का इसके साथ था. तो आइटम थ्रूपुट भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने आइटम थ्रूपुट करना है तो आई विल ट्राई टू पुट इट, फॉर एग्जांपल आई कैन डू अवे विद द फ्रीट कॉस्ट एंड पुट इन द आइटम थ्रूपुट. ठीक है. तो आई डोंट वांट टू रिपीट थिंग्स. यानी मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये होगा कि मैं यहाँ पर जैसे एक ही बहुत ज्यादा हम चीजें बीच में, अगर वो भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं साइज में, अच्छा डोजेज फॉर्म तो फिर फिल्टर में आ सकता है ना. आई कैन सी दिस अक्रॉस द डोजेज फॉर्म, तो आई कैन पुट दैट एज अ फिल्टर. डोजेज फॉर्म इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल. तो वेंडर नेम को चलो अगर आप यू आर नॉट दैट मच कंसर्न कि मेरा वेंडर नेम क्या है, सो अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल कैन बी, लेट्स से कि चलो डोजेज फॉर्म अगर मैं क्लिक कर भी लूं, हाँ तो दिस इज ओके इंफॉर्मेशन के उसकी क्या है. तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन हमारे पास और बहुत सारी चीजें जो कि हम अभी मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल हम इसमें देयर इज समथिंग, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं जैसे फुलफिल बाया. So these are basically two shapes from, अच्छा फुलफिल बाया तो इतना ज्यादा वो चीज नहीं है कि किस रिमूव है. तो वेंडर नेम हो गया. लेट्स टॉक अबाउट सब क्लासिफिकेशन. ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लग रही. और उसके अलावा आपका प्रोडक्ट ग्रुप, ये तीन हैं बेसिकली ना प्रोडक्ट ग्रुप्स. तो ये चीजें वो है जो कि आप किसी बार चार्ट पे देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज के लिए वो नीड मोर डाइवर्सिटी. तो एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइट है. ठीक है कि किस मैन्युफैक्चरिंग साइट के ऊपर, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि हमने डिले को समझना है कि डिले क्यों ऑकर कर रहा है. तो डिले क्यों ऑकर कर रहा है, तो उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि किस चीज के क्रॉस मुझे देखना है. एक तो ये चीज है कि प्रोडक्ट कौन सा था जिसके लिए डिले ऑकर किया, और वो किस मेथड से शिप किया गया, फ्रीट कॉस्ट क्या थी. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है. उसके अलावा अगर मैंने ये समझना है कि लाइन आइटम वैल्यू के साथ थ्रूपुट किस तरह मेरा चेंज हो रहा है, तो डिले के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग साइट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डिले में तो हम सप्लाई चेन में आगे चले गए हैं. लेकिन वेंडर इज दी ओनली थिंग जो कि मुझे ज्यादा फील हो रहा है कि वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो सकती है. इनको का अगर आप देखें तो इनको में ये तीन चार चीजें हैं जो कि इनको के लेवल पे भी आप देख सकते हैं. ठीक है. वो भी हमारे, हम वो चीज अभी देखना चाह रहे हैं जो हमें ज्यादा समझ में आ जाए. ठीक है. So I think I'll stick with the vendor name. Seems most relevant to me. और इससे थोड़ा सा आपका स्कैटर प्लॉट का, तो ब्रांड इज आल्सो समथिंग जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यू कैन ड्रैग ब्रांड एज दी लेट्स से टूल टिप, राइट. तो ब्रांड जो है ना वो जेनरिक में आ जाएगा. ज्यादातर वो आपको पता है ब्रांड में हमने एक को जेनरिक कर दिया था, तो वो ब्रांड थोड़ा सा ना उसको खराब कर रहा है सिचुएशन को.
तो ब्रांड को, क्योंकि उसमें जेनरिक जो है ना ब्रांड, अगर आप इसको ये करें तो ब्रांड का अगर आप ये करें क्या कहते हैं, कहाँ गया काउंट, नहीं यार इसका वो कहाँ गया, ये देखिए जेनरिक का जो है ना सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा ये मेजर वैल्यूज कहाँ से आ गया यार, ये एक इसका ये वो होता है तो ब्रांड यहाँ पर एक होना चाहिए यार जो कि काउंट। अब आप काउंट में देखें कि 4000 रोज जो है ना वो जेनरिक की हैं। तो अगर मैंने ब्रांड को करना है तो जेनरिक, चूंकि मैंने इस तरह की रैंगलिंग इसको गलत तरीके से की है या फिर मेरी मजबूरी थी, लिहाजा ये चीज अब सबको ओवरवे करेगी, तो लिहाजा मैं ब्रांड में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि हमने उसकी रैंगलिंग सही तरह से नहीं की है ना। So therefore I'm not that much interested in using the brand right now, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ब्रांड के क्रॉस चीजें देखना चाह भी रहे हैं ना, किसी चीज के भी क्रॉस, तो यहाँ पर ये मेजर वैल्यूज का एक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट तो तमाम का वो आपको दिखा देता है सम, देख रहे हैं, पहले में वो काउंट करता है और फिर सबके क्रॉस वो आपको सम निकाल के दे देता है। तो इसमें अब आप चाहें तो आप इसको इस तरह से देख लें या स्टैक देख लें, इस तरह करके देख लें, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक मेजर वैल्यूज में तमाम का वो क्रॉस हो, बहरहाल ये अभी हमारी इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देयरफॉर इसमें अभी जो मुझे जो चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है वो ये है कि हम इसको लेट्स कीप इट, हाँ हम साइज में चीज़ें डाल सकते हैं, लेट्स सी कि हम साइज में क्या डाल सकते हैं। तो साइज में वैल्यू वर्सेस थ्रूपुट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्राइड्स का जो वेंडर है तो इट हैज़ द हाईएस्ट थ्रूपुट फॉर अ रीजनेबली लेस वैल्यू। लाइन आइटम वैल्यू उसकी कम है लेकिन उसकी थ्रूपुट ज्यादा है, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दोज जो कि जिनकी कम है और थ्रूपुट ज्यादा है, तो ये एरिया मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वेंडर्स मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मे बी वी वांट टू सी कि इन वेंडर्स का इस तरह के डिले के साथ कोई ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता, वो अभी हम नहीं देख सकते। इसमें हम उसमें क्या डाल सकते हैं, साइज में कोई चीज डाल सकते हैं। व्हाट अबाउट द वेट, कैन वी पुट दैट एज अ साइज? The average weight is the same. I think it's not making too much of a difference. Average weight remains the same. You know, it's 448. It's not that much difference, like 4 tons or something like that. So it does not really make sense to uh, maybe when we see things together, maybe उस वक्त कोई चीज हमें थोड़ा सी different नजर आ जाए। अच्छा let's see कि इसको हम और किस तरीके से थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। I think we can change the shape here. So it's looking a bit odd here. So this is okay. ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो लेट्स स्टिक विद दिस। और इसमें एक चीज ये है कि what we need to do here is that we need to put a date filter somehow। तो ये कि डेट के क्रॉस ये चीजें किस तरह वेरी कर रही हैं, तो यहाँ पर मेरी डेट जो हो सकती है across the different client delivery dates, how is it varying? Does that make sense? ये throughput across the different dates मेरा किस तरह वेरी कर रहा है, although that might not help me do the क्या कहते हैं अगर मैं इसको if I click across the different dates so it will make sense कि इसको मैं देखूं, ठीक है। I think I'll just remove the weight just to अभी हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते इस चीज की, क्योंकि हमारे पास फ्रीट कॉस्ट है, तो बल्कि मैं फ्रीट कॉस्ट के हिसाब से यहाँ डाल देता हूँ, तो इट्स मोर कन्वीनियंट विच इज मोर, उसका वेट से ज्यादा ताल्लुक लगता है। तो आप देख रहे हैं इसका वेट के साथ ही उसका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, तो ये हम इसको यहाँ पे देखें, इसका ये भी आ गया कि व्हाट इज दैट। बहरहाल डज इट मेक सेंस टू पुट अ डेट फिल्टर हियर?
it does not make sense, right? Yeah, how things are changing across the time. डाल के देख लेते हैं इसमें तो I just want to see how whether it's going to make any difference. So I can see it across the different years. So if I want to select a particular year, so I can do that. तो ये थोड़ी सी flexibility हमने यहाँ पे रखी है. देखें इसमें एक चीज आप याद रखें कि मैं एक ही चार्ट में हर चीज नहीं डाल सकता, ठीक है. अब यहाँ पर मैं अगर एक दो और वेरिएबल डालना चाहूँ, डज नॉट मेक सेंस. मैक्सिमम या 2 या 3 वेरिएबल्स, या हद हो गई मैं 4 वेरिएबल्स एक जगह पे डाल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है. यहाँ मैं कह सकता हूँ कि थ्रूपुट versus line item value, or obviously I can just throughput versus line item value. ठीक है. अब ये मेरे पास जो है ना, ये ऑब्वियसली आई हैव दिस 3 चार्ट्स. अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया था कि एक चीज में आप so I can just fit the width here, that will make it more convenient for me, ठीक है. और अब इसको जो है ना वो हम देखना चाहते हैं कि अब हम इसको इकट्ठा हम इसको डील करना चाह रहे हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू मेक अ डैशबोर्ड. तो डैशबोर्ड के अंदर तो सबसे पहली चीज है वो ये है कि यू गॉट दिस टाइल्ड एंड फ्लोटिंग, ठीक है. तो इसके अंदर जो है ना वो टाइल्ड रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझना और प्लेस करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो ये आप देखें, आपने तीनों जो शीट्स हैं आप यहाँ पर है. अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट साइजेस हैं. अभी तो हमने इसको फिक्स साइज रखा हुआ है, बट आई मीन इफ आई से लैपटॉप ब्राउजर फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ पे जगह छोड़ देगा ये, बिकॉज उसको पता है लैपटॉप ब्राउजर की स्क्रीन साइज छोटी है. फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप ब्राउजर रखूँ, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए यहाँ पे. यू कैन ऑल्सो चेंज द लेआउट्स हियर अकॉर्डिंग टू यू नो व्हाट यू वांट. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालना है या कहाँ पे डालना है. तो फिलहाल आई एम एट द डेस्कटॉप ब्राउजर स्टेज. the default, the device preview is, you can have the device preview here कि किस तरह लगेगा. So if you change the devices, this is the desktop, this is the tablet, this is the mobile, और ये phone है, तो ये default आ गया. तो फिलहाल तो मैं इसको I can just do away with the device preview. If I have the phone and I can see a device preview, so I have all these options like generic, iPhone, blah blah blah. So you can see कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं. तो ये चीज जो है ना इसमें आप you can क्या कहते हैं, use this if you want, but अभी currently जो है ना वो हम default preview पे ही जा रहे हैं, ठीक है. उसके अलावा ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जस्ट टू फॉर एग्जांपल कोई इमेज डाल सकते हैं, वेब पेज डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वेब पेज चल जाएगा उसमें. यू कैन पुट दीस सेपरेटर्स जस्ट टू डिवाइड बिटवीन द शीट्स. अभी हमारा मकसद तो सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आई ड्रैग इट हियर, ठीक है. और फिर उसके बाद आई जस्ट ड्रैग दिस यहाँ पर, सही. तो लेट्स सी कि ये मेरा डैशबोर्ड है. अब what I can do on the dashboard is I can do this, click different things here. मैं कहता हूँ कि keep only or whatever, और ये चार्ट आपका नीचे है. ये थोड़ा सा जो है ना इसको अभी सीधा प्रेजेंटेशन मोड, तो प्रेजेंटेशन मोड में तो ये सही है, ठीक है. बट आई जस्ट वांट टू गो बैक राइट नाउ. तो पहली चीज ये है कि देखें, मैं जब यहाँ पे मैं अपने फिल्टर्स को चेंज करता हूँ ना, so I know that these filters are for this chart, right? तो जब मैं ट्रक करता हूँ तो देखें नीचे चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट. तो उसके लिए द सेम थिंग गोज हियर. सो अगर मैं ये करता हूँ तो नीचे चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज नहीं हो रहा. बट मैं तो चाहता हूँ दोनों को कनेक्ट करना है ना. तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पे करूँ अप्लाई टू वर्कशीट्स ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, ओके.
और similarly I do the same here, apply to worksheets all using this data source, right? अब जब मैं यहाँ पे चीजें चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन ओशन एंड ट्रक, राइट? तब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी चीजें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, द थिंग्स आर चेंजिंग। और मैं इसको जूम इन जूम आउट करके इस तरह देख सकता हूँ। ये देखिए मैं ऑटोमेटिकली व्हील जूम इन जूम, तो अब ये बेसिकली आपका दिस इज हेल्पिंग मी डू दैट। अच्छा, द सेम थिंग आई वांट टू डू हियर। फॉर एग्जांपल मैं साउथ अफ्रीका पे क्लिक करूं तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यार ये इसमें डिले कम क्यों आ रहा है, राइट? व्हाई इट इज गेटिंग, इसमें डिले कम है। तो उसको समझने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ पर कहूँ कि यूज एज फिल्टर, ओके? तो मैं क्लिक कर दी यूज एज फिल्टर। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नीचे देखें कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, देख रहे हैं? तो थिंग्स आर चेंजिंग। अच्छा, एक्चुअली इसमें हो ये रहा है कि इट्स अच्छा, इसके अंदर ये एक कंटेनर्स का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल कंटेनर और वर्टिकल कंटेनर। सो आई कैन पुट दीज शीट्स विद इन द कंटेनर्स। so if I click on this, so this is the container, so I can drag this uh, within the container। तो ये अब कंटेनर के अंदर आ गया। so somehow that makes things more convenient to handle at the container level। so you can have the containers, so I can have another horizontal container here, and I can just simply drag it inside here, and so now this is also now within the containers। so it seems pretty good now। अब आप देखें कि let's say कि मैं इसको I'll just deselect that, obviously go back, drill up down। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है ना। let me just zoom in here। so the worst country that I can see with respect to the maybe with respect to the delay is Libya and Nigeria। in fact the worst is Nigeria, okay? so अब मैं देखता हूँ कि नाइजीरिया में what is happening। so if I click on Nigeria here, तो नाइजीरिया के अंदर जो आपका जो obviously the delay is the most for this chewable tablets, or the tablets have the most, all of these are tablets but these 3 tablets have the most delay। और ये बस एक सीन है जिसके अंदर वो आपका डिले जो है ना वो नेगेटिव में जा रहा है। सो नाइजीरिया के अंदर ज्यादा डिले क्यों आ रहा है? सो इज इट बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? और इसके अंदर हमने ये भी कहा था कि हमने इसको किस तरह से लिया था, इसमें फ्रीट कॉस्ट थी जो कि साइज के ऊपर था। तो फ्रीट कॉस्ट इस कितनी थी? साइज भी इसका हेल्दी है, फ्रीट कॉस्ट भी ज्यादा है, और जो डिलीवरी डिले है वो भी ज्यादा है। तो डिलीवरी डिले जो है वो बेसिकली किन वजूहात की वजह से है? वो इन 3 प्रोडक्ट्स की वजह से है जो ज्यादा आ रहे हैं इन द टैबलेट रेंज, ठीक है? और इनकी फ्रीट कॉस्ट भी ज्यादा है। तो कैन दैट बी अ रीजन? तो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस व्हेन आई सेलेक्ट लिबिया। सो लिबिया में जो है वो टैबलेट जो कैटेगरी है वो ज्यादा, आपका जो टैबलेट कैटेगरी दैट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। और उसके अलावा व्हाट हैपेंस इन एथियोपिया, तो च्यूएबल टैबलेट कम है, टैबलेट एफडीसी इज द मोस्ट वन। और नामीबिया में तो खैर कम है। तो लेट्स से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो डिले आ रहा है वो टैबलेट्स की बुनियाद के ऊपर आ रहा है, ठीक है? सो इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है? हमें कुछ भी खास पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी के क्रॉस, अनलेस के चलो अगर मैं इसको लेट मी जस्ट ड्रिल डाउन हियर। तो जब मैं एयर पे इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो एयर का डिले तो खैर सबसे कम होना चाहिए। तो let me just increase the shipment modes। so ocean और trucks के क्रॉस तो क्या है? I'm looking at this so worst possible is Nigeria। तो नाइजीरिया में क्या हो रहा है?
air charter, air charter, air charter. Nigeria में I took all these values, but ocean and truck is not there. So basically Nigeria में तो सारा air पे ही जा रहे हैं और delays air पे आ रहे हैं. That's strange. Okay. What about Libya? Libya में भी air पे जा रहा है. The delays are coming over air travel. Zimbabwe पे कुछ ट्रक लेवल पे डिलेज आ रहे हैं. वर्स्ट पॉसिबल डिले भी ट्रक लेवल पे आ रहा है. बड़ा अबाउट साउथ अफ्रीका जिसमें डिले कम आ रहे हैं. यहाँ पे भी एयर पे ही आपका जो प्रोडक्ट्स कम हैं जिस पे डिले आ रहे हैं. अभी तक हमें यही चीज समझ में आ रही है कि इसमें प्रोडक्ट ज्यादा हैं. जिन कंट्रीज में डिले हो रहा है उसमें तकरीबन सारे ही प्रोडक्ट्स हैं. नहीं, so in this case we have नाइजीरिया जिसमें सबसे ज्यादा डिले आ रहा है, उसमें प्रोडक्ट ज्यादा हैं. और जब मैंने इसको सब कुछ कर दिया है, so what if I select all? So in this case जो है वो एयर चार्टर, एयर चार्टर, एयर चार्टर, एयर चार्टर. मोस्टली एयर चार्टर के ऊपर आपके डिलेज आ रहे हैं. ओशन ट्रक तो नजर भी नहीं आ रहे हैं इसके अंदर. ओशन ट्रक तो हैं भी कम. You can't even see them that much. तो एयर चार्टर पे ही ज्यादातर डिलेज आ रहे हैं. लेकिन इससे हम लोग इतना निकाल नहीं पा रहे. We can't find out why the delay is occurring, which is the reason that we want to do all of this. So maybe our selection of this variables is not correct. So we're not able to figure out कि ज़्यादा delay. It seems कि ज़्यादातर एयर चार्टर की डिलीवरीज हैं और एयर चार्टर पे ही सबसे ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं. और फ्लीट कॉस्ट के साइजेस पे भी मैं इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं कर पा रहा हूँ. तो if I remove the tablets, तो ओशन ट्रक तो मुझे पता चल गया कि वो इतना ज़्यादा. That is not the only reason for the. In fact, let's just focus on the air charter for the time being. अब हम इसको अगर देखें कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन और ओरल सॉल्यूशन. सो फ्लीट कॉस्ट इज गिवन. फ्लीट कॉस्ट में साइज है. तो इसमें फ्लीट कॉस्ट अच्छी खासी है लेकिन डिले कम है. इसमें फ्लीट कॉस्ट कम है लेकिन डिले ज़्यादा है. So we need to plot this against each other to understand कि क्या हो रहा है. शो डैशबोर्ड टाइटल. डैशबोर्ड टाइटल शो करने की भी हमें जरूरत नहीं है. I think something is wrong here. So this is probably applicable. I don't know. हाँ जी, कोई आप लोगों की तरफ से कमेंट्स है इसमें? We need to drill down to understand कि why कुछ कंट्रीज में कुछ कंट्रीज में डिले ज्यादा है, कुछ कंट्रीज में डिले कम है. We are not able to distinguish anything with except the fact कि ज्यादातर डिलीवरीज जो है ना वो एयर उससे हुई है. एयर चार्टर से डिले ज्यादा हम फिगर आउट कर सकते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट कहाँ पर है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट और आपका जिस कंट्री में डिलीवरी होनी है उनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको एक देख सकते हैं कि अगर डिले जो है वो डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है नहीं. हाँ, ये हो सकता है.
लेकिन आई थिंक इसमें हमारे पास नॉलेज अगर हो ना तो हाँ हम इस पर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। असल में सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं और होती है ना, और इन्वेंट्री कहीं और होती है, और इन्वेंट्री से फिर आगे जाता है, तो वही असम्पशन अच्छी हो सकती है, उसमें ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे एयर चार्टर किया था सिर्फ, तो बहुत सारी कंट्रीज गायब हो गई। तो एयर चार्टर हर जगह पे नहीं जा रही, एयर पे हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इसमें तो अगर मैंने सारे प्रोडक्ट्स पे भी देखा है ना, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा, ऑल वी कैन से इसके ओरल सस्पेंशन का जो है ना वो सबसे अच्छा ट्रेंड आ रहा है, कि वो बेसिकली एयर मोड में, या चलो एयर और एयर चार्टर अगर मैं इकट्ठा देख लेता हूँ, तो वो जो है वो सही जा रही है। तो ओरल सस्पेंशन है और टैबलेट एफडीसी को ब्लिस्टर है, ये जल्दी डिलेज आ रहे हैं। फीड कॉस्ट को साइज में डालने से मुझे इतना कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये कॉस्ट ज़्यादा है तो डिले ज़्यादा है, दैट डज नॉट रियली मेक सेंस, क्योंकि इसकी आप देख लें विड्थ कितनी है, 6523 है और ये 16 है। तो इसमें मेरे पास फीड कॉस्ट अच्छी खासी आ रही है, लेकिन डिले जो है वो इसके मुकाबले में कदरे कम है। So there does not seem to be any association with respect to that. That was a wrong assumption from my side. So अब हमने देखें, जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग पहले ये सोचें कि क्या नजर आएगा, that was the thing. अब जब आप इस तरह से impromptu करेंगे और टैबलेट पे सॉरी डैशबोर्ड पे आके चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो that is not the right way, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। पहले से अगर हम सोच के रखेंगे ना कि डिले को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, क्या मैट्रिक्स मुझे कंप्यूट करने चाहिए, फिर आप उनको ड्रैग करके डिले कर लें। तो अभी जैसे आपने जम्पशन दिया है, वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं, वो पहले से हम करके रखें। तो ये चीज़ें जो सब मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ आपको यानी हमें करनी चाहिए, ठीक है। अभी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो बहरहाल दिस इज द डैशबोर्ड, तो इसको भी हम लेते हैं बाद में। यहाँ पर हम इसको बता देंगे, दिस इज बिकम पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी हम इसको ये करते हैं। अच्छा, दूसरी ये फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग में ना वो जरा थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो जाता है, तो वो आपको खुद ही प्लेसमेंट्स वगैरह करनी पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस डैशबोर्ड डज नॉट टेल अस मच, या मैं ये कह सकता हूँ कि लेट्स इसको मैं इस तरह लिख देते हैं, देयर does not seem to be, yeah, this dashboard does not give us much information. This dashboard does not give us much information regarding why the delays are occurring. इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। अब ये मैं यहाँ पे कहीं प्लेस कर लूँ, ये यहाँ पे कर लें आप, या आई डोंट नो यहाँ पे कर लें, तो इसका साइज आप यू कैन रीसाइज इट। अच्छा, ये उसके असल में ये इसको आप फ्लोटिंग बना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको फ्लोटिंग करते हैं आप, तो ये अब यहाँ पे आप यहाँ पे करके, ठीक है। बस हमें मैक्सिमम ये चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि जो there does not seem to be any correlation of the freight cost with the delay, क्योंकि वो सारा रैंडम है। और मुझे ये नहीं, आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बेसिकली कि जैसे मैं साउथ अफ्रीका पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन सी द प्रोडक्ट्स के वो है। मैं ये भी नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो जहाँ पे डिले हो रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट जा रहा है लीबिया में, यहाँ पे इतने सारे जा रहे हैं। और मेरा डार्क कलर किधर आ रहा था, जो कि ज़्यादा डार्क कलर आ रहे हैं, ये आ रहा है शायद कोदे वॉक। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज़्यादा जा रहे हैं। और मीडियम डिलेज की अगर आप देख लें, किसी में कुछ जा रहा है, किसी में कुछ जा रहा है। तो मैं एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे नहीं कर पा रहा कि डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भेज रहे हैं जो कि
उसकी वजह से आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू दी द थिंग्स दैट यू आर सेंडिंग, ठीक है। दूसरा ये कि फ्रीट कॉस्ट से भी हमें कोई इतना खास चीजें जो है ना वो समझ में नहीं आई हैं, तो देयरफॉर आई नीड टू डू समथिंग एल्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सो बहरहाल ये ऑब्वियसली एज एन असाइनमेंट आपको दिया जा सकता है, आप इसको ड्रिल डाउन करें। अब हम ये करते हैं कि आई कैन हैव अ न्यू डैशबोर्ड और आई कैन सिंपली डुप्लीकेट दिस डैशबोर्ड। तो इसमें मैं ये जो है इसको मैं आई कैन सिंपली do away with this, or I can just drag it here. हाँ ये आ गया, तो इसको खैर मैं कंटेनर में डाल सकता, तो इसमें भी मैं वही करता हूँ कि क्लाइंट डिलीवरी डेट जो है वो आपका ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। अब वो खैर इतना ज़्यादा यहाँ पर वो चीज़ों को, सिर्फ फोकस ऑन दी लेटेस्ट जस्ट थ्री ईयर्स, तो पिछले 3 साल को अगर मैं देखूँ तो वो ये हो गया, ठीक है। और आई थिंक कि वो चीज़ें यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगी पिछले 3 साल की, देख रहे हैं आप। तो जो चीज़ यहाँ चेंज हुई वो यहाँ पर भी चेंज होगी पिछले 3 साल में, तो सारे सारे शीट्स पे वो आपको चेंज नज़र आ जाएगा। तो बहरहाल अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पिछले 3 साल में जो ज़्यादा मुसीबत वाली जगह थी वो नाइजेरिया है। तो नाइजेरिया में अब क्या हो रहा है, दिस माइट बी इंटरेस्टिंग। एवरेज आइटम थ्रूपुट जो आ रहा है वो किस वेंडर का आ रहा है, SCMS का आ रहा है। लेकिन क्या डिले का उससे ताल्लुक बनता है आइटम थ्रूपुट से? जो प्रोडक्ट डिले हो रहा है, आई थिंक नहीं बनना चाहिए, मतलब लॉजिकली। ये बेसिकली सिर्फ बता रहा है कि मतलब पर पैक कितनी क्वांटिटी में चीजें शिप हो रही हैं। हाँ तो इस मुल्क का बता रहा है ना। थ्रूपुट तो बेसिकली सिर्फ पैकेजिंग वाली चीज से रिलेटेड होगा, तो वो डिले का आई हाँ डोंट उससे थिंक। तो ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो बहरहाल ये चीज़ है कि अब हमें बेसिकली, अच्छा एक और चीज़ इसमें ये है कि जब आप यहाँ पर चीज़ें चेंज करेंगे ना, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि आप आगे डैशबोर्ड पे चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो बहरहाल पहला काम तो मैं करता हूँ कि मैं इस फ्रीट कॉस्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से रिमूव किया तो यही मामला यहाँ पर भी हो गया, सब फ्रीट कॉस्ट आपकी रिमूव हो जाएगी। नाउ चले पहले हम वो कर लेते हैं डैशबोर्ड 1। यहाँ मैं कह देता हूँ कि मैप डोजेज फॉर्म शिपमेंट मोड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैप डोजेज फॉर्म और थ्रूपुट व्हाटएवर। मैं ऐसा भी डैशबोर्ड बना सकता हूँ, मैं तीनों ड्रैग कर लूँ, तीनों ड्रैग करूंगा तो शायद मुझे ज्यादा चीजें पता चल जाए। लेकिन मुझे पहले इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ये करनी है कि कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मुझे रीजन बता सकते हैं कि डिले क्यों ऑकर कर रहा है। वो हमें इस क्या कहते हैं शीट्स के अंदर कोई इतने खास चीजें अभी, या तो हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करनी पड़ेगी कि किन चीजों के क्रॉस डिले ज्यादा हो रहा है, किन चीजों के क्रॉस डिले कम हो रहा है, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उस पर जरा हमें सोच विचार करनी पड़ेगी। फिर मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखा दूं, मकसद ये है कि हमें रीजंस पता चलें। तो वो रीजन अभी तक हमें नहीं पता चली है, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास इसका अभी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रांग नहीं है कि डिलेज किन किन वजूहात से ऑकर करता है। उन वजूहात को फिर मैं अपने डेटा में तलाश करूंगा। अगर वो वजूहात नहीं होंगी तो फिर मैं उन वजूहात की कोई मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उनको मैं मॉनिटर करूंगा अलॉन्ग विद ऑल दी अदर फिल्टर्स। उन सबको कंबाइन करके मैं देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं नॉट डिलीट, मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं तीनों को, अभी तो हमने शीट्स भी बहुत कम बनाई हैं,
ठीक है, तो ये मैं नीचे कर देता हूँ और ये मैं जो है ना वो यहाँ पे कर देता हूँ, एंड आई कैन सिंपली जस्ट focus on this area. Something like that. और अब जो है ना ये सब चीजें आपकी इकट्ठी मूव करेंगी, देख रहे हैं? तो अगर मैं पूरे टाइम पीरियड पे देखूं, और अब मैं थोड़ा सा शिपमेंट मोड तो मेरा सही है क्योंकि ओशन ट्रक मेरे पास इतना है नहीं, और चूंकि मेरे ज़्यादा मेरे वही हैं, टैबलेट्स ही हैं, तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन दीज टैबलेट्स फॉर द टाइम बीइंग। बाकी सब चीज़ें मैं साइड पे कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है ना असल में, दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो हम एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर हम डिले देखना चाह रहे हैं, तो जितने भी टैबलेट्स हैं मैंने उनको साइड पे कर लिया फॉर द होल टाइम पीरियड। तो अभी जैसे हमने कहा कि भाई इस चार्ट का इतना कोई खास तुक बनता नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ बता रहा है। तो मुझे बस ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डिले ज़्यादा आ रहा है, अच्छा ये मुझे यूजर्स फिल्टर करना पड़ेगा, एक मिनट है यूजर्स। इसमें सिर्फ टैबलेट जा रहा है, इसमें ये चीज़ें जा रही है। टैबलेट कोब लिस्टर जो है ना वो मुझे थोड़ा सा बेहतर टच दे रहा है। इनके थ्रूपुट में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा मुझे, और साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, वो टैबलेट ही जा रही है। ये स्ट्राइड्स भाई जो है ना वो साउथ अफ्रीका में सबसे आगे हैं बहरहाल। तो यू सी के जब मैंने आपसे कहा कि आप पेपर पे बनाएं पहले इसको, तो पेपर पे बनाने का फिर मकसद ये होगा कि अब आपने चूंकि इसका हैंड्स ऑन करके देख लिया, तो आपको पता है कि अब टैब्लू में चीजें किस तरह काम करनी है एट द डैशबोर्ड लेवल। अब आप पहले से इन्विजन करें कि यार क्या फिल्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ताकि फिर आप उसको तरीके से जो है ना वो आप एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो इन दिस वे आई कैन कनेक्ट। एक डैशबोर्ड में मुझे पता चल गया कि कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए जो कि मैं इसको देख रहा हूँ। अगर मैं देखूं कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो पिछले 1 साल में देखिए सिनेरियो सारा बदला हुआ है। ठीक है, ऑल्दो ये चार्ट तो बिल्कुल बेकार है दिस वन। बहरहाल अगेन नाइजीरिया ऑलवेज हैज द वर्स्ट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स। तो नाइजीरिया में क्या हो रहा है, तो इन दिस केस आप देख रहे हैं कि यही 3 चीजें ऐसी हैं जिसको ज्यादा जा रहा है। इसमें नाइजीरिया में चूएबल टैबलेट भी वो डिले पे जा रही है। तो आई कांट रियली drill down into those things क्योंकि हमने सही एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो बहरहाल ये चीज़ है। अब हमने अगर इसमें जो है ना वो स्टोरी क्रिएट करनी है, तो स्टोरी में ये बुक आइकन आप करें, तो अब ये स्टोरी आ गई आपकी। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स हैं, शीट्स हैं, वट। तो आई कैन स्टार्ट अ स्टोरी लाइक दिस कि मैं कहूँ कि जी एवरेज डिले अफ्रीका। ठीक है, मैं यहाँ पे कैप्शन ऐड कर दूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट at least 3 countries have serious delay issues and 3 countries don't have any delay issues। बल्कि डिले उसमें उल्टा जो है ना वो नेगेटिव के अंदर है। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये हो रहा है। तो ये मैं यहाँ पे इसको तो क्या था वो इसमें, ये खैर अभी सही है। तो ये आपका आ गया। अब ये मैंने बेसिकली इसको तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक ब्लैंक आप करेंगे। अब ये दूसरा आ गया, ये अब स्टोरी बन रही। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। अब ये हम इसमें जो हमारा दूसरा डैशबोर्ड था
ये हमने यहाँ ड्रैग कर दिया, या इसको छोड़ें आप, ये मैंने गलत ड्रैग कर दिया इनफैक्ट। मैं किस तरह just delete that. I can have a blank here, so I'll just drag this dashboard 3. और dashboard 3 में कह सकता हूँ कि this dashboard is absolutely useless. ठीक है, अब इस तरह आप जो है ना वो स्टोरी क्रिएट करते रहे, पहले ये दिखाएं फिर ये दिखाएं, तो इस तरह आपकी स्टोरी बनेगी। तो टेबलू में ये चीज जो है ना ये बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें जो भी आप ड्रैग टू ऐड टेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट दैट, शो टाइटल, टाइटल आप शो करना चाहते हैं शो कर लें, स्टोरी का साइज आपने क्या रखना है, ये सारे लॉजिस्टिक्स हैं यहाँ पे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। सो ये आपका टेक्स्ट आ गया, तो आप इसमें भी स्टोरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशंस वगैरह ऐड करनी है, लेआउट में यू कैन हैव these numbers 1 2, you can have dots, you can have arrows only. So बहरहाल तो शो एरोज में भी आप कर सकते हैं। दैट्स द लेआउट ऑफ द स्टोरी। और डैशबोर्ड के लेआउट के ऊपर यू कैन डिसाइड नॉट टू शो द टाइटल, फ्लोटिंग आप रख सकते हैं तो फ्लोटिंग रख लें, बॉर्डर वगैरह, आउटर पैडिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई, टाइल्ड हायरार्की, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई कि डैशबोर्ड के ऊपर क्या क्या मेरे पास काम हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू थिंग्स। सो यू हैव अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में जो जेनरिक चीज़ है वो आप सबसे पहले बताएंगे कि भाई मैप पे देखें ये हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पे डैशबोर्ड्स में मैप को जरा दिखाया जाता है ऊपर। ठीक है, तो इसको, इस बात को सबूत देने के लिए लेट्स सी हियर, ये मैं कहता हूँ कि डैशबोर्ड मैप, यू कैन सी कि मैप जो है ना इट बिकम्स प्रोमिनेंट इन मोस्ट डैशबोर्ड्स, के मैप के साथ पे दूसरी चीजें नीचे आपको दिखाई जाती हैं। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, तो इसका मैं फिर अब ये करता हूँ कि मैं एक असाइनमेंट आपको दे देता हूँ छोटा सा, कि आप टेबलू के फीचर्स यूज करके आप एक पूरी स्टोरी क्रिएट करें, छोटी सी स्टोरी क्रिएट करें कि व्हाई द डिलेज आर हैपनिंग, डिले किस तरह कंप्यूट। अब देखिए मैंने जो डिले जिस तरह कंप्यूट किया ना वो तो सिर्फ अपने बिल पे किया है कि भाई ये डिले का वो हो सकता है कोई और फॉर्मूला भी हो इससे बेहतर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा एनालिसिस में आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ये अभी इसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, साइकिल फील्ड्स, ये फिर हम परसों ही देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी तो मैं आपको वो ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं, तो लेट्स सी कि मेरे पास ये है, तो इसके अंदर मैं एनालिसिस में लेट्स ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन इज दिस वन, परसेंटेज ऑफ, अभी मैंने इसको परसेंटेज ऑफ लेट्स से कॉलम, तो कॉलम वाइज परसेंटेज में क्या है, तो ये दिस परसेंटेज ऑफ थोड़ा सा वो चीज़ों को वो कर देता है। टोटल्स शो रो ग्रैंड टोटल्स, ये अगर कोई टेबुलर फॉर डेटा हो ना तो उसके अंदर आप ये टोटल्स आपका जरा सा तुक बनेगा, टेबल लेआउट, लेजेंड्स, फिल्टर्स, हाइलाइटर्स। एनालिटिक्स के अंदर अभी फोरकास्ट इसमें एनेबल्ड नहीं है, तो अगर लेट्स ट्राई टू client delivery date, or let's the delivery day, so let me have a line here. सर इस वीक इस तरह ये छोटे वाले असाइनमेंट्स आप छोड़ दें सर, हम ऑलरेडी जो 15% वाला है वो बहुत लेंदी काम है और दूसरी चीजें भी हैं। हाँ ये देखें ये चीज आ रही है, ठीक है, और इसमें अगर मैं फोरकास्ट करूं तो इट्स एक्चुअली नॉट एबल टू कंप्यूट अ फोरकास्ट, क्योंकि वो डेली लेवल पे वो बेचारा बहुत परेशान हो गया है। तो लेट्स से वीकली लेवल पे उसने फोरकास्ट किया, ये फोरकास्ट भी इतना मजे का नहीं है, तो मंथली लेवल पे उसने ये फोरकास्ट कर दिया अगले महीने के लिए, ये है। अब इस फोरकास्ट के लिए जो है नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बेसिकली यूज।
So I can see I can tell basically कि forecast किस तरह से देखना चाहिए हमें. ये है forecast में forecast options. Forecast options में forecast model में automatic without seasonality. Seasonality उस वक्त होती है जब हम सालाना डेटा ले रहे हो. तो custom नहीं, custom तो नहीं. Let's assume कि I don't have a seasonality. Automatic 9 exactly 1 month. या चलो 2 months पे तुम कर लो, लेकिन वो सेम दिखा रहा है ना, इसलिए मुझे इतना अच्छा. शो प्रेडिक्शन इंटरवल्स 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के साथ. एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा आपका डिस्क्राइब द फोरकास्ट. सो ये आपका क्वालिटी इज वेरी पुअर, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा आपका उस तरह का जो है ना वो आ नहीं रहा है. तो मंथली लेवल पे डिले इज नॉट, आई मीन अगर मैं इसको कहाँ गया यार डेटा, अगर मैं इसको, अबे यार एवरेज से भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद ही किया ना. लेट मी जस्ट रीड कॉस्ट. रीड कॉस्ट में भी जो द क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, इसकी भी क्वालिटी वही होगी. डिस्क्राइब द फोरकास्ट. The data is not the best one for the. Let me just put it back to automatic mode. Alhamdulillah. Aggregate over days. हाँ, ये बहुत ही फजूल डेटा है यार, ये तो बहुत ही फजूल डेटा है. इसको हम क्वार्टर लेवल पे ले जाएं तो शायद फोरकास्ट वो कंप्यूट ही नहीं बेचारा कर पाएगा. नो फोरकास्ट. तो बहरहाल मतलब फोरकास्ट में होता ही है कि आपके पास यहाँ पर नीचे डेट डिलीवर डेट होता है, और यहाँ पर आपकी वो दूसरी होती है, क्या कहते हैं, KPI होता है कोई. तो लेट्स से कि आइटम थ्रूपुट अगर मैं लेता हूँ, why is not able to compute a forecast? और ये मैंने वो उसको नहीं किया, तो अब आपको पता तो चल गया कि भाई इसको किस तरह से वो करना है. तो ये चीजें सारी हासिल टैसल हो गई हैं जिस वजह से ये चीजें. सो यू गॉट द वेट एक्सेट्रा. तो अच्छा, आप कह रहे थे कि भाई इसको ना दें असाइनमेंट को. जी सर, इस वीक आप ना दें प्लीज. चलो मैं डेडलाइन उसमें मई में डाल देता हूँ. उसको थोड़ा सा कर. अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को अब शेयर करनी थी कि ये है आपका प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये आप थोड़ा सा सुन लें क्योंकि बच्चे आए नहीं है तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैंने एक ड्राइव पे फोल्डर बना दिया है प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें मैंने 10 डिफरेंट डेटा सेट्स डाले हैं. ठीक है, यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू. सो आई गॉट दिस प्रोजेक्ट जिसमें ये मेरे पास 10 डिफरेंट डेटा सेट्स हैं. ये डॉक्यूमेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी उसी के अंदर है. ठीक है, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 2 एज इन दी असाइनमेंट जो आप अभी कर रहे हैं. हर ग्रुप जो है ना वो 2 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेगा, यानी उनमें से एक बच्चा एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा. वन इन पावर BI एंड द अदर इन टेबलू. किस बच्चे ने कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो उन 10 में से होना चाहिए. अच्छा, जो वन मतलब जो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसके आपको 40% नंबर मिलेंगे, उसमें से आपकी मार्किंग होगी. बाकी 10% स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके ग्रुप मेंबर के प्रोजेक्ट के लिए. चाहिए तो जो आप एज अ स्टेक होल्डर इनपुट देंगे दूसरे प्रोजेक्ट को वो आपका 10% होगा. जो आप खुद अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो 40%. टोटल वेटेज 50% है. तो नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन दोनों प्रोजेक्ट्स में जाएगा, ज्यादा आपके अपने प्रोजेक्ट में जाएगा. ठीक है,
अगर प्लेजरिज्म का कुछ मुझे हिंट लग गया तो बेसिकली आपके आधे नंबर 50 में से कट जाएंगे और ये रेशो सिर्फ 25% में से असाइन होगी। इन 25% का 40% आपका ओरिजिनल होगा और उसका बाकी 10% आपका स्टेक होल्डर हो जाएगा। आधे नंबर आपके कट जाएंगे अगर प्लेजरिज्म का पता चले। डेडलाइन मैंने रखी है 28 मई, ठीक है, जो कि बहुत अभी आपके पास अच्छा खासा 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, आप आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपने सबमिट क्या कराना है, जस्ट द PDF, सही है। अगर आपको क्लाउड लिंक देना चाहते हैं आप दे दें, लेकिन वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। सबसे ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे स्टोरी टेलिंग के, जैसे आज हमने देखा है कि द वे यू कनेक्ट डिफरेंट चार्ट्स टू ईच अदर टू मेक अ स्टोरी एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड हाउ द फिल्टर्स एंड ड्रिल डाउन्स एंड मार्क्स इन Tableau हेल्प यू ड्राइव मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, सही है। PDF का कंटेंट क्या होना चाहिए, डेटा सेट कौन सा सिलेक्ट किया जिसपे आपने 40% वाला काम किया है, BI टूल कौन सा है आपका, आपकी टॉप 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड नॉलेज की क्या है, ये मैंने कुछ एग्जांपल दे दी हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी, ना कोई टेम्पलेट फिल करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 इंफॉर्मेशन है वो आपने बतानी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप बता दें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कौन सी सॉल्व करेंगे, एक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओनली वन that you will solve through this BI access mention specifically। ज्यादा लंबे छोड़े अगर कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं। फिर आपने पेपर पे इस मसले को कैसे हल किया, पेपर के स्नैपशॉट्स चाहिए, ठीक है। अपलोड images of your on paper with this can include filter hierarchies and drill downs or page in Tableau। It must be clear generally how this paper story will solve the problem। उसके बाद आप डेटा की रैंगलिंग करें, और रैंगलिंग में आपने सिर्फ 2-3 चीजें करनी है, एनोवा करना है और काई स्क्वायर करना है, बस। उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है कि शेप भी दिखा रहे हैं और बॉक्स प्लॉट भी दिखा रहे हैं। बॉक्स प्लॉट आप दिखाना चाहते हैं अपनी मर्जी के लिए, वो आप दिखाना चाहें, ठीक है। यू कैन ऐड अदर स्टफ टू डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। If you want, for example, box plots, density plot, etc. ठीक है, this might fetch bonus, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने रैंगल द डेटा, तो आपने बेसिकली जो, हाँ सबमिशन में मैं आपको वो भी फाइल चाहिए होगी यार, जुपिटर नोटबुक। और यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, paste the notebook in the PDF file along with submitting it separately। सही है, ये तो खैर अभी बहुत सारे बच्चों ने उसमें भी चर्न के असाइनमेंट में भी किया था। अच्छा हाँ, आपके तकरीबन मार्क्स तकरीबन सारे चेक हो गए हैं। ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ अभी अभी, बस ये चर्न की असाइनमेंट चेक हो रही है जो 5% है ना, बाकी आप ये देखें ताकि आप लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाए, ये तकरीबन सारे हो गए हैं। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में दे दूंगा, क्योंकि ये जरा मुश्किल काम है तो मैं बहुत सुकून से कर रहा हूँ। अभी तक जो अच्छे नंबर हैं, मोहम्मद अदील सिराज का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उमर आबिद ने जबरदस्त किया है, और सना का भी अच्छा था, ठीक है, हाजरा का भी अच्छा है। बस वो वही बात है कि किसने कितना उसको समझा और इंटरेक्टिव कितना बनाया है, ठीक है। पर उसके बाद फिर क्या है कि इमेजेस ऑफ योर एक्चुअल BI चार्ट्स जो आपने बनाए हैं वो आप उसका करें, और यहाँ पर आपका जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट का नॉलेज है वो भी अप्लाई होगा। एड ब्रीफ स्टोरी एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ प्लीज, लंबी चौड़ी कहानियां लिखें, अपना काम ना बढ़ाएं लंबी चौड़ी कहानी करके, ठीक है। फिर मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर ग्रुप मेंबर स्टेक होल्डर, ठीक है, ब्रीफली कि मेरे स्टेक होल्डर ने क्या बेसिकली कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये आप उसका कंट्रीब्यूशन मेंशन कर दें। तो बाकी लिंक टू योर ऑनलाइन डैशबोर्ड इन केस यू वांट टू गिव, और फिर आपका अपना रोल क्या था, क्योंकि ये तो वो है कि आपके दोस्त ने क्या दिया, ठीक है, और ये वो है कि आपने तो उसके ग्रुप में क्या दिया, योर शेयर रोल फॉर द अदर प्रोजेक्ट।
ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं आई। आपकी पीडीएफ में आपके अपना भी पूरा आ गया, आपका जो आपके ग्रुप मेंबर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो आ गया, और आपने खुद क्या दूसरे प्रोजेक्ट में किया वो भी आ गया, सारा पीडीएफ का कंटेंट है। ठीक है, तो इसकी जो डेडलाइन है वो 28 मई है, तो आपने अपनी पीडीएफ 28 मई को जमा करा देनी है, एंड दैट बेसिकली मीन्स कि दोनों का काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये आप इसको मैं लिख देता हूँ कि मेंशन एज अ बुलेटेड लिस्ट, एज अ बुलेटेड लिस्ट, क्योंकि उसमें समझना बहुत आसान होता है कि उसको मैं लिख देता हूँ कि of 5 to 6 points only। ठीक है, और यहाँ भी मैं यही लिख देता हूँ कि ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां लिखे हैं, तो जो जो है ना बस वो लिख दें। ठीक है, सही है जी। ये आपका प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि डेटा क्या है। ऑडिटिंग का जो प्रोजेक्ट करेगा उसको बोनस मिलेगा, क्योंकि ये मुश्किल काम है। ऑडिटिंग में आपको वो करना पड़ेगा, समझना बहुत पड़ेगा, देयर इज मच टू डू। तो ऑडिटिंग है हर प्रोजेक्ट के अंदर। आपकी सीएसवी मैंने डाउनलोड की है, सारे के सारे कैगल से डाउनलोड किए प्रोजेक्ट्स हैं, और कैगल की ये पूरी जिप फाइल है जो अनजिप करके मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कर दी है। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो बेसिकली कैगल का लिंक है जहाँ पर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। इनसाइड द प्रोजेक्ट, inside each projects folder is a text file containing the Kaggle link for that data set। ठीक है, तो ये ऑडिटिंग का हो गया। उसके अलावा बैंक की मार्केटिंग कैंपेन, डिलीवरी ट्रक्स, ई कॉमर्स पाकिस्तान डेटा, ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, फ्लाइट डिलेज, मैड्रिड रियल एस्टेट डेटा, मार्केटिंग कैंपेन, बूस्टिंग प्रॉफिट, पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम डेटा सेट एंड सप्लाई चेन का भी डाल दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जबरदस्त इसके अंदर चीज है। ठीक है, पर ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो 2 होंगे, और करना प्रोजेक्ट तो हर एक को फिर भी है, लेकिन बात यह है कि आप उसको, एक बंदे को पावर बीआई पे करना पड़ेगा, दूसरे बंदे को टैबलू पे करना पड़ेगा। ये बस थोड़ा सा एक डिसीजन है जो कि लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा होमोजेनिटी रहे विद रिस्पेक्ट टू द स्किल सेट। तो ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन थी, तो ये मैं अभी लॉन्च कर देता हूँ। तो अभी आपके पास 1 महीने से ज्यादा है, तो वो आप लोग साथ साथ इसको चलाना शुरू कर दें। ठीक है जी, सही है। ओके सर।